out the things. Then for it is for solenoid. Similarly, the third point is what is that? E is equal to minus L into di by dt. ठीक है? हाँ? This is the three way how you have found out. यहाँ पे L is equal to n phi by I और हम जानते हैं E is equal to L di by dt. तो उस दोनों को हम ये करके हमने इसको निकाला. Okay. Similarly, we have mutual inductance. What is mutual inductance? Huh? And anyone can tell what is mutual inductance? EMF produced in coil 2 by the flowing of current in coil 1. Yes. The inductance produced in the coil 2 due to current flow in the coil 1. So I can write it. यहाँ पे mutual inductance 1 2 हम कैसे लिखेंगे? Phi 1 N2 by I1. ठीक है, तो मतलब क्या है? करंट I1 फ्लो हो रहा था और वो जो phi 1 जाके कहाँ पे लिंक हुआ? N2 को लिंक हुआ. राइट? तो उसी हिसाब से we can write it here. M is equal to current flow is in the coil 1, flux is produced in the coil 1 and it is linked to the coil 2. Clear? Similarly, we have methods to find out. The methods to find out, three methods in this. Method 1, method 2, method 3. तो method 1 में ये हो गया this. This is the method 1 and method 2 में वही. This is the method 2. What is that? It is your N1 N2 by what is that? Reluctance. This is the second method. And third method is just like this one. It is M is equal to minus EM is equal to minus M into DI1 D1 by dt. Okay. So these are the methods, and now we'll go for coefficient of coupling. So coefficient of coupling means how much it is coupled. If you have two coil, दो coil है हमारे पास and two are magnetically coupled. ठीक है, दो coil है मेरे पास and two coils are magnetically coupled and the coil is A and the other coil is B and they are having number of turns N1, other is having number of turns N2. ठीक है, और उन दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? पहला का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 and second the self inductance is L2. Clear? Understood? So they have two self inductances and now the flux phi 1 produced in A due to current I1 is कितना? phi 1 आ गया, phi 1 आ गया हमारा. Similarly, suppose K1 is the of this flux फ्रैक्शन कितना लिंक हुआ? समझ लो, ये डायग्राम मेरा है. ठीक है, देख लो. यहाँ पे हमने करंट दिया क्या? I1 दिया है और यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ phi 1, वो जो phi 1 यहाँ कितना परसेंटेज यहाँ पे लिंक हुआ? कितना? K1 into phi 1 यहाँ पे लिंक हुआ कि नहीं? देन व्हाट इज योर M? M इज योर क्या है? इतना परसेंटेज ऑफ phi 1 इंटू किसको लिंक हुआ? किसको? टेल मी. कॉइल 2 और करंट इज I1. Understood? So in this we have written here M is equal to क्या लिखे हम? M is equal to K1 phi 1 by into N2 by क्या? I1. And we know phi 1 value. Phi 1 value हम जानते हैं. Yes. So by substituting phi 1 value, we can get it is your K1 into N1 N2 divided by what is that? L into L divided by mu 0 mu 1. ठीक है, ये आ गया हमारा M. ये किस चीज के लिए M आया है? कौन से करंट के लिए?
विच करंट, विच करंट, I1 के लिए, ठीक है कि नहीं? दिस इज फॉर Yes, sir. I1. इफ यू गो लाइक दिस, इस तरफ से हम जाएंगे I2 लेके, तो वो भी होगा कि नहीं? I2, yes, no. So the flux is again, it is N2 I2 by this. Again the how much is linked to this coil, यहाँ पे flux आ जाएगा क्या? phi2. And how much is linked to this coil? K2 into phi2, नहीं? तो इस तरफ से K2 into phi2 लिंक हुआ, और वही जो हमने कॉइल 1 को ऐसे किया था, कॉइल 2 को करने से क्या आ रहा है? सेम, M इज इक्वल टू क्या आ रहा है? N1 N2 बाई L बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। तो दोनों का आ गया, हाँ M। अब क्या करेंगे हम यह करेंगे दोनों M को, इक्वेशन 1 में जो M आया है और इक्वेशन 2 जो M आया है, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड, व्हाट वी गॉट? क्या मिला हमको? M square is equal to K1 K2 into what is this? This is your N1 square and by what is that? L by mu 0 mu r into A divided into N2 square this. तो finally क्या हुआ? What will happen? After solving this one, after solving this one, this value is nothing but, ये क्या है? हाँ, what is this? ये वैल्यू L. क्या है? दिस वैल्यू इज योर L1 and this value is your L2. L2. What we got? We got your M square is equal to, हमको क्या मिला? M square is equal to K1 K2 into, अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे M लिख के यहाँ पे रूट ओवर मार दूंगा, तो क्या आएगा? We will get रूट ओवर K1 K2, हाँ, K1 K2 into क्या? L1 L2. Suppose you have K1 is equal to K2 is equal to K. हम्म, तो क्या हो जाएगा? ये अंदर का क्या हो जाएगा? K बाहर आ जाएगा सर। बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे M is equal to K into root over L1 right. So if this is, and suppose somebody will ask you what is your K? K is nothing but M by, अगर कोई तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई I have two coil with me and the first coil have inductance, self inductance L1 and the second coil is self inductance L2 and they have a mutual inductance of M, you find out the coefficient of coupling. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? हाँ, 1. 1, क्योंकि वो जोर से कपलिंग हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइटली कपलिंग तो होगा 1, नहीं तो मिनिमम वैल्यू बिल्कुल 0. कपलिंग ही नहीं होगा, 0। अंडरस्टूड? सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0, राइट? यस और नो? हाँ, और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? एम का यूनिट क्या है? Henry. हेनरी। एल का यूनिट? Henry. तो हेनरी। तो सर इसका Unitless. नो। हाँ, it has no unit, unitless. Understood? And its maximum value is 1, minimum value is 0. It tells us a magnet is tightly coupled, means 1 होगा तो क्या हम सोचेंगे कि मैग्नेट टाइटली कपल्ड है। अगर मैग्नेट K इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या सोचेंगे? हाँ, ये मैग्नेटिकली आइसोलेटेड इच। आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे वो दोनों का कुछ संबंध ही नहीं है, राइट? तो तुम लोग को यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज योर कोएफिशिएंट कपलिंग,
तो तुम लोग क्या लिखना है, कोएफिशिएंट कपलिंग के इज इक्वल टू एम बाई रूट ओवर L1 L2। समझ रहे हो, ये तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, व्हाट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मींस इट टेल्स अस हाउ मच, व्हाट इज दैट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज a constant and it defines the ratio of, what is that, mutual inductance actually present between the coil to the maximum possible value। ठीक है, और इसको डिफाइन करना क्या, m इज इक्वल टू k इज इक्वल टू m बाय रूट ओवर L1 L2, its maximum value is 1 when it is tightly coupled, when it is 0 it is magnetically isolated and it has no No unit. unit। ठीक है, तो ऐसे भी तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, तो प्रॉब्लम भी उस हिसाब से तुम लोग को वो देंगे। देख लेते हैं एक, देखो यहीं पे प्रॉब्लम दिया है ये वाला, तो क्या दिया है, दो कॉइल दिया है, हाँ, ए दिया है, ए का कितना 12,500 टन, बी का कितना 16,000 टन। ठीक है, एंड लाई इन ए पैरेलल ट्रेन, सो दैट, क्या बोल रहा है देखो, सो दैट 60% ऑफ द फ्लक्स, ठीक है ना, 60% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस इन ए लिंक विथ बी, मीन्स ए में जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका 60% ही बी को लिंक हो रहा है, एंड it is found that current is 5 ampere in A. Current 5 ampere A and produces a flux of point कितना 0.6 milliweber। ठीक है, सेम, while सेम करंट, वही करंट बी में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी में प्रोड्यूस कर रहा है 0.8 millimeter. 0.8 milliweber। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालो। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमको क्या क्या डाटा दिया है, हमको N1 N2 दिया है, हमको फ्लक्स 5 दिया है और उसका 60% लिंक हो रहा है वो भी दिया है। ठीक है, 5 भी दिया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए बोला। तो हमें पहले स्टार्ट करेंगे फ्लक्स, हाँ, पर एम्पियर इन ए, हाँ, फ्लक्स पर एम्पियर कितना कितना फ्लक्स आ रहा है हमें, हाँ, 0.6. 0.6, और कितना करंट वो दे रहा है 5 एम्पियर, तो फ्लक्स पर एम्पियर आ गया कितना 0.12, हाँ, 0.12 मिली वेबर। उससे कितना लिंक हो रहा है बी को, कितना बता रहा है 60%. 60%, तो 0.12 का 60% ये बी को लिंक हो रहा है। ठीक, सो व्हाट आई विल राइट इट, एम, फॉर्मूला क्या था एम का, हाँ, एम का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कहाँ लिंक हो रहा है, N2 को लिंक हो रहा है, फ्लक्स क्या है, फॉर्मूला क्या भूल गए हो तुम लोग, बोलो। I1 N2 by हाँ, by I1, I1. हाँ, By ये हुआ I1. बाई I1, I1. I1। तो देखो ये हो गया तुम लोग का लिंक होने वाला, हाँ, ये एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे K1 5 1 है कि नहीं, हाँ, K1 5 1 एंड N2 बाई I1, तो K1 5 1 कितना है 0.072, और मिली हेवर है तो उसके लिए माइनस हमने लिख दिया, और ये पूरा करंट के साथ आ रहा है कि नहीं, तो ये पूरा हमको दे दिया है हाउ मच 0.072, और इंटू N2 कितना है, ठीक है, तो आ गया कि नहीं एम आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड। तो के के लिए फॉर्मूला क्या है, के का m बाई L1 L2 का रूट ओवर, तो हमें अभी m मिल गया है, अब हमें चाहिए L1 L2, तो हम L1 निकालेंगे। L1 का फॉर्मूला क्या है, क्या है, N1 I1 बाई बाई I1. I1 I1. I1 I1. खत्म। ऐसे इसका
N2 N2 by I1 N2 I2 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 बाई I2, और यहाँ पे दिया है I1 I2 सेम है कि नहीं? yes तो sir ये हो गया yes sir L1 आ गया, ये L2 आ गया, हमने अपना फॉर्मूला में डाल दिए, तो आ गया तुम लोग का क्या? Sir, attendance. हाँ, so what you got? You got your value is how much? 0.586. So this is the way you can get your mutual, what is it? Coefficient of coupling. ठीक है, coupling कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे दिए हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम निकाल सकते हैं. So and again next we'll be reading the inductance in series. ठीक है, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है? yes रेजिस्टेंस sir सीरीज में current same होता है यस करंट सेम होता है, एंड रजिस्टर क्या होता है? ऐड हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज योर R equivalent is R1 equal plus to R1 plus R, R1 plus R2 R1 plus R. ये किस चीज के लिए है? ये हो गया तुम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, और यहाँ पे तुम लोग क्या दे रहे हो? यहाँ पे तुम लोग flux करंट, फ्लक्स, इंडक्टेंस, ये इलेक्ट्रिसिटी में. अगर हम मैग्नेटिज्म में आ जाए तो क्या होगा? इंडक्टेंस इन सीरीज. मेरे पास दो कॉइल है, ये हुआ पहला कॉइल, ये हुआ दूसरा कॉइल. ठीक है, देख रहे हो? एंड टू कॉइल्स सो जॉइन इन सीरीज एंड देयर फ्लक्स, जो फ्लक्स है, यहाँ पे एक फ्लक्स आ रहा है कि नहीं? हाँ, एंड यहाँ पे एक फ्लक्स आ रहा है, तो दोनों फ्लक्स, दो हालत होंगे यहाँ पे, वो कभी ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना, कभी माइनस हो सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, yes sir yes sir. जो फ्लक्स आ रहा है और यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, दो कंडीशन हो सकता है. पहला कंडीशन, दे आर इन एडिटिव, मीन्स दे आर इन सेम डायरेक्शन. हाँ, दूसरा, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं. तो हम पहला कंडीशन लेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो है, उनका बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? M है. ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, उनके बीच में म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M. और उनका सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल 1 का कितना है? L1, कॉइल 2 का L2. ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे भाई कॉइल 1 में कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है. तो E1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कौन सा लॉ? L1 इंटू DI/dt. क्यों यहाँ पे DI लिखे हैं? क्यों? करंट इज सेम इन बोथ द केसेस, यस और नो? क्योंकि ये yes sir कौन सा है? सीरीज है. तो दिस इज योर E1. E1 मीन्स द EMF प्रोड्यूस, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल. ठीक है, ये हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. वहां पे एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF आएगा कि नहीं? हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज योर, हमने पढ़ा था माइनस क्या है? दिस इज योर माइनस M इंटू DI/dt. ठीक है, ये कौन सा है? कॉइल किसके लिए? कॉइल ए के लिए. first हाँ, तो बता दे रहा हूं फिर से तुम लोग को ये एक बार. कॉइल ए के लिए तुम लोग का क्या है? कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, हाँ, और म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो इसके वजह से आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो कॉइल 1 के लिए, ए के लिए सेल्फ इंडक्टेंस इज दिस, एंड दिस के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इज दिस. इस तरह कॉइल 2 के लिए क्या होगा? कॉइल 2 के लिए सेल्फ इंडक्टेंस है ये दिस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज दिस. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? हेलो? yes yes sir sir तो इसके yes लिए, sir इसके लिए सेल्फ एंड म्यूचुअल, इसके लिए सेल्फ एंड म्यूचुअल, तो दोनों का आ गया. अब जो बोल रहा है टोटल इंडक्टेंस,
total inductance when the EMFs are in opposite. टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? द टोटल इंडक्टेंस होगा अगर बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? द टोटल इंडक्टेंस विल बी L1 क्या प्लस L2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू M। तो हम क्या करें, सबको मिला दें ना। सबको अगर मिला दें तो क्या आ रहा है? फाइनल इंडक्टेंस इक्वल इन इंडक्टेंस। इफ दे आर एडिटिव इट इज योर L1 प्लस L2 प्लस 2M। सिमिलरली इफ दे आर ऑपोजिट, देखो यहाँ पे सर्किट देख रहे हो ना, ये करंट कैसे जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये इसलिए ये क्या है? दोनों क्या, ये वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो इसको अपोजिट कर रहा है, ये ई आ रहा है तो ये भी ई आ रहा है, तो दोनों कैसे हैं? एक ही दिशा में है, तो एडिशन हुआ कि नहीं? ये सब ये एडिशन है। ईएमएफ यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे ईएमएफ ऐड हो रहा है तो क्या आएगा? L1 प्लस L2 इंटू प्लस 2M। यहाँ पे देखो करंट कैसे जा रहा है, इधर निकला, ठीक है ना, फिर क्या हुआ? यहां से हम देख रहे हो? अटेंडेंस। हाँ ठीक है। तो ये हम तुम लोग को कल बताएंगे, अभी लोग को थोड़ा उतावला हो रहे हैं, राइट? तो हम अटेंडेंस डाल दे रहे हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कहाँ पे गया? यस यस, एक मिनट। So you will be in that, yes, attendance and time is कहाँ कब कब शुरू किया हमने? 11 सर 11:30 11:30 11:30. 12:30। So and we'll be in that house of Kalam. Topic will be choosing। आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है क्विज कपलिंग। टेस्ट। हाँ, तो हम डाल रहे हैं। टेल मी सुप्रभात मंडल, आर यू प्रेजेंट देयर? सर। टप्पो, प्रेजेंट सर। हसन राजा, प्रेजेंट सर। अमन, अरुण, प्रेजेंट सर। दीपक, then 1 प्रेजेंट सर। 2 यस सर। 3 प्रेजेंट सर। 4 5 अमन आनंद, 6 7 यस सर। 8 यस सर। 9 10 11 12